Yes. Correct. The limitation of Coulomb's law is that it is applicable only for point charges and it is applicable only for charges at rest. Coulomb's law हम केवल point के लिए apply कर सकते हैं, but अगर कोई और shape हो तो integration के help से we can still calculate the total force. Right? Coulomb's law principle of superposition अगर बहुत सारे charges हो तो हम calculate करते हैं by the resultant of all the forces that we got. हमने कुछ example किए थे last class में. Next अगर सपोज कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और उसके हर एक कॉर्नर पे सेम चार्ज रखो n sided polygon if the charge on each corner is same q the net force on the charge at center is 0. This I think we did last class. Right, we did this case अगर n-sided polygon है और n-sided polygon के हर एक corner पे charge हो, then the net force is 0. Now situation is n minus 1 charges are kept at the vertices of n-sided regular n-sided regular polygon. Calculate the force on the charge. Find the force on the charge. Calculate center. मेरी आवाज आ रही है क्लियर? नीति? Yes, sir. Clear है बोल. Side length is E. The side length of polygon is A. Now we calculate the force on the charge kept at center. So the distance is not given. वो distance हमें find out करनी पड़ेगी. But उसके लिए हम क्या करेंगे? Before that, इसमें logic क्या है? N minus 1 का अलग अलग तो निकालेंगे नहीं. N तो कुछ भी हो सकता है ना? 20 sided, 19 का resultant, 19 का resultant निकालना खतरनाक है. तो हम ये कर लेते हैं क्या? All these n minus 1 charges clubbed together, n minus 1 charges का total. और अगर यहाँ पर एक hypothetical assume कर ले, nth charge. The force due to n minus 1 charge plus force due to nth charge. इन दोनों का समेशन कितना? 0. अगर सारे n चार्जेस रखे होते तो सबका समेशन 0 आता. n minus 1 charges का force plus force due to nth charge. This is due to n minus 1 charges. And the other due to nth charge. दोनों का समेशन 0. n minus 1 charges का जो force होगा that will be exactly equal but opposite to the force that is provided or applied by the last nth missing charge. So अगर 20 साइड है उसमें सिर्फ 19 का force उतना ही होगा जितना कि last 20th का है, but जिस डायरेक्शन में उस 20th का force होगा उसके exactly opposite. बाकी चार्जेस हैं वो अपना इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगे. But exactly opposite नहीं है. It's a pentagon होगा. It's a pentagon. प्रैक्टिकली चार्ज तो इसके it's a pentagon है. Pentagon में इस force का the force आएगा इसके बदला आएगा. They are not exactly opposite ना. तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो सारे कैंसिल आउट हो सकते हैं. So हम देखिए देखिए लाइन में. हेक्सागन में तो लाइन में होते हैं. यहाँ पर क्या है कि forces are not on the same line, but in the resultant zero होता है. Right?
equal, it's not necessary that they must be exactly opposite in direction. कुछ कह रहे थे? इस वाले में तो ऐसे ऑक्टल तो सारे इक्वल ऑक्टल में तो n साइड है, बना के ऐसे वो n साइड कुछ भी हो सकता है, 15 20 25 30 7 ऑक्टल जाके में पूछना तो कार्ड निकाल कि उससे मैंने क्या पूछा है इसमें? मैंने पूछा ये इसमें n साइडेड पॉलीगन है, सपोज 10 साइड्स, अगर 10 कॉर्नर्स पे चार्ज रखे होते तो सेंटर का फोर्स 0 होता है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बाय सिमेट्री। अभी केवल 9 पे चार्ज है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू दिस 9 चार्जेस, उसी को जनरल टर्म्स में n साइडेड पॉलीगन है, उसके केवल n-1 कॉर्नर पे चार्ज रखता है, ये यहाँ पे कैलकुलेट की फोर्स एक्टिंग n-1 को निकालोगे इट विल बी अ वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन, पहले ग्रुप का रिजल्ट है फिर उसका तीसरे से चौथे से ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सिमेट्री n-1 का फोर्स ले लिया हमने Fn-1, और अगर यहाँ पर चार्ज होता तो उसका जो फोर्स होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट, लेकिन नेट होता है 0, एज्यूम किया तब तो 0 होगा टोटल, उसको हटाओ तो हमें निकालना क्या था कि अभी कैलकुलेट दिस Fn-1, this Fn-1 by using this logic, net तो हमेशा 0 होता है, force due to n-1 is exactly equal opposite to the force due to nth charge, n-1 को भूल जाओ, केवल जो लास्ट वाला बचा उसके लिए का डिस्टेंस है r, calculate that force acting between them, k capital Q small q by r, इतने भी साइड का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने स्मॉल स्मॉल q अगर यहाँ होगा तभी तो सब 0 होगा, ये सारे क्यू है, यहाँ बाय क्यू और रख दो, वो केस बन गया सिमेट्री वाला, सिमेट्री मतलब सारे कॉर्नर्स पे अगर सेम चार्ज होते हैं तो नेट फोर्स इज 0, राइट। हमारी सॉल्यूशन के लिए तो मैग्नीट्यूड निकालें, डायरेक्शन में इसको force due to n-1 charges will always be equal to force due to the nth charge, समझ आ रहा है फिर से नोट कर लो फिर से लो, हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर कोई पॉलीगन है n साइडेड पॉलीगन और सारे कॉर्नर पे सेम चार्ज है तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर इज 0, राइट, चाहे वो 6 हो 7 हो 8 हो 10 कितने भी साइडेड हो, अभी क्वेश्चन में है कि n साइडेड है लेकिन चार्ज अंकल n-1 रखते हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स ड्यू टू दीस ऑल चार्जेस केप्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ दिस सेंट्रोइड वाला कराया था उसके लिए सेंट्रोइड, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन किसी में भी सॉलिड बनाया ये लास्ट का हम पढ़ा तो उसके बाद बहुत सारे वो भी वहां पे क्या होता है हमारे रेगुलर पॉलीगन सेवन हम ये कर रहे हैं यहाँ पे जो सेंट्रोइड के लिए क्या था, सेंट्रोइड की तरह ही सिमिलरली फॉर ऑल दी शेप्स ऑफ पॉलीगन नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर विल ऑलवेज बी 0, n-1 और अगर आप nth को इंक्लूड कर लें तो सबका टोटल समेशन 0 होता है, सर nth को इंक्लूड करेंगे जब गिवन होगा तो चलिए अज्यूम कर लें, अज्यूम कि यहां पर है, दिस इज अज्यूम n-1 का nth टोटल मिला के 0 होते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है n-1, ये कैलकुलेट करते हैं तो हम सबका रिजल्ट निकालते हैं, हमें लॉजिक निकालिए जितना ये होगा सेम इज बिकॉज़ ऑफ द लास्ट चार्ज, तो उस एक के लिए निकालना है रुद्र, जब r की वैल्यू कितनी होगी, अभी r कैलकुलेट करना बाकी है, r इज नॉट नोन, हमें गिवन था साइड में दिस लाइन इज 8, r की वैल्यू कितनी आएगी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री से वो सेंट्रोइड वाला याद है ना, सेंट्रोइड वाला वैसे स्क्वायर के लिए होता है, अगर सारे कॉर्नर पे सेम चार्ज then force at the center will be 0,
क्योंकि सारे कंसेप्ट ये रिपल्सिव तो सेम लॉजिक यूज करेंगे। सेम लॉजिक किसी भी अनसाइडेड पॉलीगन में चलता है 4 हो 5 हो 6 हो 8 हो अगर सेम चार्जेस रखे हुए हैं तो हमने यहाँ पर हमें चार्जेस सारे ना रखे एक चार्ज मिसिंग था आउट ऑफ n ओनली n-1 चार्जेस आर केप्ट टोटल साइड है 10 चार्ज रखे 9 उन 9 चार्जेस का फोर्स कितना है लॉजिक ये लगाया कि 9 चार्जेस का फोर्स उतना ही होगा जितना कि आखिरी वाले 10 बट अपोजिट एक के निकालने के लिए डायरेक्टली k इक्वल टू 2 बाय r स्क्वायर अब इस r को हम a के टर्म्स में कैसे निकालेंगे व्हाट विल बी दिस एंगल टोटल ये एंगल कितना हुआ तो एक साइड में बनाया n इतना मैं बता दूं ये क्या टोटल एंगल फॉर्मेट इस एंगल इज 2 बाय टोटल एंगल इज 2 बाय साइड कितनी है n 2 पाई बाय n और 2 पाई बाय n में भी इसका आधा हो गया 5 बाय n राइट टोटल एंगल इज 2 पाई और ऐसे n साइड्स हैं तो 2 पाई समथिंग है दिस लेंथ विल बी हाफ a by 2 a by 2 is perpendicular r is hypotenuse that become sin theta sin pi by perpendicular अपॉन hypotenuse is sin theta यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी a upon 2 sin pi by substitute here k cube capital Q small q divided by a square और ऊपर कर देंगे तो 4 sin square pi by डायरेक्शन हम लिख देंगे अपोजिट दूरी है इसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं यस force due to n-1 charge is exactly equal to force due to the last missing charge समझ गए ना यस ऑनलाइन किसी को डाउट समझ में आ गया ये पायल बट ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे चार्जेस पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो गया तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते देन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल फोर्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सारे नेगेटिव हो तभी सेम केस बट अगर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है तो वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ही होगा देन यू कैन नॉट से दैट नेट फोर्स इन द सेंटर मस्ट बी 0 राइट आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड all the non-contact forces जो बिना contact के लगते हैं जैसे gravitational force between two masses it is applied without any contact similarly the electrostatic force charge force between the charges it is also applied without touching each other right जितने भी non-contact forces हैं उनके लिए theoretical definition बड़ी सी क्लास लगती है they are supposed to be produced by some exchange. Four fundamental forces. कौन कौन से?
gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear and weak nuclear. Right? So interaction between any two particle, अगर वो बिना कांटेक्ट के हो रहा है तो उसको हमेशा एक्सप्लेन करते हैं theoretically by some exchange particle. M1 और M2 बिना टच के फोर्स लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं? It was theoretically explained that इनके बीच में एक पार्टिकल एक्सचेंज होता रहता है, that is called graviton. 11th का पहला चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा ना, graviton. Similarly, charges के बीच में they are also applying force, and that is also explained that they are exchanging photon between each other. But actual में ऐसा exchange होता नहीं. This is just a hypothetical theory. Theory का मतलब ये होता है which is not necessarily true. So actual concept क्या है? Actual concept ऐसे explain करते हैं. जब भी हम किसी charge को रखते हैं in any position, any charge is kept, this charge creates an electric field in the surrounding region. चारों तरफ इसकी अपनी field बन जाती है, and that field is defined as the region or space in which if any other charge comes or any other charge is placed, उसको लगेगा force. So electric field एक तरह से इलाका टाइप हो गया, the whole area of this charge in which if any other charge enters, it experiences a force. This is kind of okay. Please write the region or space around a charge. The region or space around a charge in which any other charge experiences a force when placed in which any other charge experiences a force when placed. Experiences a force when placed. Yes, the region or space around a charge in which any other charge experiences force when placed. तो ये तो एक theoretical definition है, चार्ज के चारों तरफ का सारा एरिया उसकी फील्ड बन जाता है. कौन बनाता है? Who produces the electric field? Who establishes the electric field? Photon. चार्ज की चारों तरफ फील्ड उसकी फोटोन की वजह से बन जाती है. What is the speed with which photon moves? Speed of light. फोटोन लाइट का पार्टिकल है. तो जैसे हम किसी भी पोजीशन पे चार्ज को रखते हैं, उसके चारों तरफ उसकी फील्ड क्रिएट हो जाती है, and that field is established with the speed of light. Right? So ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे रीजन में दिस होल रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके किसी एक पॉइंट पर अगर हमें पता करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई डॉट है, इसका सारा एरिया है, उसके किस पॉइंट तक डॉट की कितनी चलती है, लाइक दैट. सो इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज एट एनी पॉइंट, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं बाय फोर्स acting on a unit positive test charge. So next line से लिखना, the strength of electric field at any point, the strength of electric field at any point is defined as force acting on a unit positive test charge is defined as a force acting on a unit positive test charge kept at that point. Unit positive test charge kept at that point. Test charge
टेस्ट यस। So unit टेस्ट करने के लिए करना है यहाँ पे unit positive test charge calculate that. So electric field E is electric field is denoted by इलेक्ट्रिक फील्ड तो है सारा स्पेस है और उसे किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय वहां पर एक यूनिट चार्ज रखते हैं यूनिट का मतलब 1 कूलम यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स फील होगा दैट फोर्स विल बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। So, electric field is defined as force acting on a unit positive test charge kept at that point. उस पॉइंट पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है यूनिट पॉजिटिव यूनिट का मतलब 1 पॉजिटिव मींस 1 कूलम ये जो चार्ज है वो theoretically हम बात करें 1 कूलम चार्ज की बट 1 कूलम चार्ज इज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम चार्ज इज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज ये बात कर चुके हैं दैट practically it is not possible स्मॉल q की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए जो टेस्ट चार्ज रख रहे हैं वो अगर 1 कूलम कर देंगे क्या होगा this charge becomes so powerful that now this dominates over the whole charges electric field पता करने गए थे q की वो खत्म हो गई q नॉट की सब जगह फील्ड हो गई छोटे डॉट से एक बड़ा डॉट आ गया that means the whole electric field now belongs to q नॉट तो जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो नहीं होना चाहिए it has to be in fact as small as possible that is only for the definition purpose practical purpose so basically ये है कि q नॉट को किसी छोटा होना चाहिए ये उससे छोटा थोड़ा छोटा होगा तो ये बराबर कैसे नॉट को देगा कहीं ना कहीं q नॉट की वैल्यू इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसके होने का फर्क ही ना डिटेक्टिव टाइप होना चाहिए जाए और पता करके आ जाए कितनी वहां पर स्ट्रेंथ है कितने वहां पर इफेक्ट है उस डॉल का विदाउट गेटिंग नोटिस्ड समझ गया तो स्टार मार्क के राइट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज हाइपोथेटिकल unit positive test charge is hypothetical practically it has to be as small as possible bracket में था q not tending to 0 practically it has to be as small as possible practically it has to be as small as possible so that it does not affect the original electric field so that it does not affect the original electric field.
should be as small as possible so that it does not affect the original electric field. Original मतलब Q की electric field Q की थी, उसको पता करने के लिए Q naught रखा, so Q naught should not interfere with the actual field, right? So force इसके बीच में था between the charge Q and Q naught by Coulomb's law K Q1 Q2 by R square and divided by Q naught. कैंसिल आउट हो गया, तो चार्ज ही खत्म हो गया, उसकी इलेक्ट्रिक की वैल्यू निकल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया K Q by R square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी केस में हो सकता था, अभी जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। स्मॉल q इज अ पॉइंट चार्ज और उससे r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at a distance r from it. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सारे चारों तरफ का स्पेस, उसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पे रखते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज अ हाइपोथेटिकल अमाउंट ऑफ चार्ज। हाइपोथेटिकल अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है, सो द चार्ज हैज टू बी नेग्लिजिबल। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square। If the charge is kept in vacuum, अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन। डायरेक्शन क्या हुई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक्चुअल में है नहीं, अपने से भटका हुआ है समझने के लिए डेफिनेशन पर्पस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, पॉजिटिव को रिपेल करता है, so the direction of electric field will be away from a positive charge। चार्ज तो नेगेटिव हो सकता है, ओरिजिनल चार्ज नेगेटिव हो सकता है। if we are converting the electric field to negative charge, नेगेटिव के पास में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, so it attracts towards itself, right? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे होगी, डायरेक्शन वाइज away from the charge, electric field due to positive charge. Test charge is always positive. जहां पे कैलकुलेट करना है वहां पे हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करना और जिस चार्ज की फील्ड कैलकुलेट करनी है उसका इफेक्ट करना। पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव को रिपेल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। Then is given to E is equal to again KQ by R। इलेक्ट्रिक फील्ड की और डायरेक्शन चेंज होगी पॉजिटिव से नेगेटिव होने पे, बाकी मैग्नीट्यूड बाय दिस थिंग टुवर्ड्स द चार्ज, राइट? अब बताओ, that was my question. What will be the unit of electric field? Unit क्या होगी? Force upon charge. Force unit न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, so that's why it is न्यूटन पर कूलॉम। और दूसरी पोटेंशियल की टर्म्स में होती है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वोल्ट्स पर मीटर। ये वैसे वो है कि आर डिस्टेंस इस चार्ज का कितना इन्फ्लुएंस है, ज्यादा बड़ा चार्ज होगा तो ज्यादा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग किसी भी चार्ज के इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है इन द सराउंडिंग स्पेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड फॉर इट, राइट? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ। बाकी सब कुछ खाली फोर्स की जैसे ही, बस दूसरे चार्ज को 1 कूलम अज्यूम कर लेंगे। K1 Q2 by R square, अदर चार्ज इज 1। यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स फील होता है, that is called electric field। अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E।
फिर यहाँ पे 5 कूलम चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा 5 ही 10 कूलम चार्ज होगा तो 10 ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लगने वाला है व्हेन अ चार्ज इज केप्ट ऑन बाय यूनिटरी मेथड यूनिट चार्ज पे E सो Q चार्ज पे Q राइट ऊपर साइड में पोजीशन चेंज कर दो तो नहीं हटा सकते वो I'll make one match already finally अभी तक सब तक यस डाउट इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स और फोर्स के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो सिमिलरली वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं अगर पॉइंट चार्जेस और हमें इन सबका मिला के ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल n नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू multiple charges due to multiple charges or due to system of n point charges. So there are n number of charges and we have to calculate the electric field at certain point in this space. So ये भी principle of superposition को use करके calculate करेंगे. Calculate the electric field due to each charge. Calculate the electric field due to each charge and then add them vectorially like Q1, Q2, Q3 at point 2 and so on up to Qn. The net electric field statement, the net electric field at any point, the net electric field at any point is given by vector sum of all the electric field is given by vector sum of all the electric fields present at that point. So किसी पॉइंट पर अगर बहुत सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर उन सबका वेक्टर रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे जस्ट लाइक वी डू फॉर फोर्स. Right. So it is also a like this summation principle of superposition. Now suppose if there are two charges minus q and plus 4q है. And number of charges as well as q. टेस्ट में ये तो एक्चुअल चार्ज है टेस्ट चार्ज तो बाहर रखा होता है यहाँ पे लिक्विड कैलकुलेट करते हैं टेस्ट चार्ज इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट टेस्ट चार्ज जैसा कुछ होता नहीं है एज्यूम कर ले यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है या यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है बाकी सबका फोर्स निकालेंगे और उन सारे फोर्स का रिजल्ट ये टेस्ट चार्ज में रियल चार्जेस जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये q and minus q and 4q. Now we have to calculate the electric field at point A, B and C. Calculate electric field at point A, B and C in the following diagram.
प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से पहले सबके अलग अलग फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स द चार्ज, माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को टुवर्ड्स E1, at point A इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस क्यू चार्ज इज E1, E1 आ गया k q by a square. Again we will not put this minus sign की और डायरेक्शन पता करते हैं। Another charge is plus 4q और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, due to minus q it is E1 and due to plus 4q electric field is E2, that becomes k 4q. Distance from 4q to point A becomes a 4q से लेके आने की डिस्टेंस a, so divided by 3a whole square. पॉइंट ए पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक माइनस क्यू की वजह से, दूसरी प्लस 4q की वजह से, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्यों अपोजिट हो गया ना, E1 is towards right, E2 is towards left। माइनस भूल जाओ, ये माइनस है वो लेकर दिया, यहाँ पे कहीं माइनस नहीं है, ये माइनस है, इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज और ये पॉजिटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। जब कैलकुलेट करें तो माइनस लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम डायरेक्शन ऑलरेडी देख रहे हैं। मतलब वो लेना k 4a upon 3 होल स्क्वायर माइनस k a q upon a, जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करेंगे ना, दोनों में बड़ा कौन सा है, E1 E2 में बड़ा कौन सा है, E1, तो 4/9 है यार, 4/9 is less than 1, hence E1 E2 में बड़ा कौन है, E1, so electric field at point A will be E1 minus B। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, फोर्स कैलकुलेट करें, हमें कहीं पर भी नेगेटिव नहीं रखना है, दैट नेगेटिव इज ओनली फॉर द डायरेक्शन। We decided the direction of force by using that negative value। कितना है ये फिर 5/9 k³ by a square। What is the direction? Towards right or towards left? यूनिट में कौन सा बड़ा है, E1। P is the midpoint actually, P midpoint है।
माइनस क्यू के लिए दिस इज अगेन टुवर्ड्स द चार्ज, इवन पॉजिटिव के लिए इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज टू डैश। पॉइंट बी पे जो फोर्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो दोनों की फील्ड ऐड हो जाएंगी बिकॉज़ दे आर द सेम मैच। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी द रिजल्टेंट ऑफ E1 and E2। तो इस डायरेक्शन में निकलेगी, डायरेक्शन लेफ्ट में आ रही है और दोनों ऐड हो जाएंगे अभी। E1 at point B where you calculate electric field due to minus q charge, it becomes kq by a square. Electric field due to the plus 4q charge, k into 4q by a square. The net field will be summation of these two, E1 dash plus E2 dash, that becomes 5 kq by a square. Direction is towards left, direction is towards left. A में towards right था क्योंकि E1 is greater than E2। अब आते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे A जो नेगेटिव चार्ज था माइनस क्यू, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज E1 डबल डैश, और प्लस 4q की होगी अवे फ्रॉम इट E2 डबल डैश। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। Okay. Anurag, what is the answer at point C? Anurag, थोड़ा समझ आ रहा है? Anurag, am I audible to anyone? पायल, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, very nice. What is the answer for C? E1 dash लिखा हुआ because of the negative charge K, और ये डिस्टेंस हमें 2a plus a 3a square। K times 4q divided by a square. Now when you calculate the net electric field, E2 dash और E1 double dash में कौन सा है बड़ा? Which one is greater? E2. So E2 double dash minus E1 double dash, that will be the net electric field at point C. Right. K ये गया 4 kq by a square minus kq by 9a square, 35 kq by 9a square. This is electric field at point C towards the right, because E2 double dash. This is mistake. This is mistake. Positive charge, negative charge. Accordingly, we will say what is the direction of its supply calculate कर लेंगे resultant using the principle of superposition. Okay, next question. This is plus q, and the charge is plus 2. Find the position where electric field is zero.
where the electric field is zero. In those positions where electric field is zero is called null point. So you can leave heading without this. This is the concept of null points. In a configuration of charge, the position where net electric field is zero is called where the position of net where the net electric field is zero is called position of null point. So null point. कई सारे हो सकते हैं, depends. चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमें पहला केस क्या है कि केस 1 ये कॉन्सेप्ट कितने कर लेते हैं बिकॉज़ ये बोर्ड में भी आता है। नल पॉइंट का मतलब द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अगर उस पोजीशन पे कोई भी चार्ज को रखेंगे इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। So another language of same question is finding position where a charge will not experience any force if placed. So क्या करते हैं नल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए नल पॉइंट पहला केस है केस 1 if both the charges are of same sign and unequal दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो when both the charges are of same sign इस केस में हमें नल पॉइंट पता करना है कहां पर होगा और इसके लिए क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होगी Q और 4Q के बीच में डिस्टेंस सपोज ये देयर आर थ्री पॉसिबल रीजन एक Q के लेफ्ट साइड का सपोज रीजन 1 दूसरा इन दोनों के बीच का रीजन नंबर 2 और तीसरा 4Q के राइट साइड These are the three possible reasons जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे सो पहले हम क्वालिटेटिवली ये पता करते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है चांस हम लोग कैसे पता करेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है तो कैंसिल होकर जीरो हो सकती है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन देन इट कैन नॉट कैंसिल सपोज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 ये पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज away from the charge right 4Q is also positive charge की electric field away from the charge E2 away from the charge E2 and away from the charge in which region it is possible to have null point only in second because second में opposite है बाकी 1 में दोनों सेम डायरेक्शन में 3 में दोनों सेम डायरेक्शन में so हम यहाँ के assume कर लेते हैं certain point P which is the distance x from Q a minus x from 4 चलिए लॉजिक जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें कुछ ऐसे करेंगे क्या लिखना पड़ेगा स्कूल पे तो आएंगे ऐसे क्वेश्चन जल्दी जो कंप्यूटर लैब में आएंगे इसमें स्कूल में तो आते हैं इसमें ऐसा था कि कैलकुलेट दी पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऐसे कर सकते हो बट नल पॉइंट ऐसा नाम नहीं है बट क्वेश्चन ये तो आ ही सकता है फाइंड द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो यस तो आपको एग्जाम में लिखना हो ऐसा लिख सकते हो देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है सो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज एंड ड्यू टू 4Q चार्ज they both cancel out each other E1 must be equal to E2 K Q by x square K 4Q by a minus x square
k cube on 4x square is a minus x whole square. Take the root. 2x is a minus x, 3x is a, x equals to a by 2. So the null point is at a distance a by 3 from charge q. ये तो लॉजिक को भी पहले भी लिख दिया आगे 17.p इक्वल टू p2 भी हम ऐसे करके कर सकते हैं तो इसको ऐसे बट ये पता होना चाहिए कि वो p किधर हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी ले सकते हो ना। तो डायरेक्शन में होगा कि डायरेक्शन में हम तो बस इसको पोजीशन निकाल तो पोजीशन तभी होगा ना जहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ले लिया जाए x, तो पॉसिबल ही नहीं ना कि यहाँ पे दोनों फिट सेम डायरेक्शन में। हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से रीजन में, कौन से लोकेशन में नल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के एग्जाम में भी है, अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं तो उसका जो नल पॉइंट होगा वो हमेशा कहाँ लाई करता है, दोनों के बीच में। और ये a/3 है छोटे वाले चार्ज के, 2/3 है बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस। So null point is always closer to the smaller magnitude charge. जब न्यूमरेटर छोटा तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तभी वो रेशियो इक्वल होगा। Because when charges are of same sign, when charges are of same sign, the null point is always, you can use any board में इसी पे क्वेश्चन आते हैं। When charges are of same sign, the null point is always in between. Null point is always in between, closer to the smaller magnitude charge. Closer to the smaller magnitude of charge. So board में ये 1 मार्कर में क्वेश्चन है तो उसमें क्या लिखना है हमें? अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 and Q2 and null point रखी है बीच में P. What are the conclusion? Mathematically क्या लिख सकते हैं? The product of charge Q1 into Q2 is positive and magnitude of Q1 is less than magnitude of Q2. Right? Okay. Second, अगर ये चार्जेस सेम साइन के और सेम मैग्नीट्यूड के हो फिर क्या होगा? Null point is midpoint. Same sign और same magnitude तो होगा तो बीच में हमें exactly midpoint मिल जाएगा. Second case is when charges are of opposite sign. एक positive और एक negative. Second case when both the charges are of opposite sign. एक है -2 और दूसरा +4. Distance between them is. Again, first we check in which region it is possible to have zero electric field. Divide again the whole space into 3 different regions and check which region it is possible to have opposite direction of electric. Region 1 is supposed towards the left of -q. Region 2 is in between. If suppose in negative charge electric field is even, negative charge के लिए electric field होती है towards the charge, towards the charge, towards the charge. तो और की electric field positive होती है, the positive charge के electric field away from it, away from it, away from it, away from it. Now in which region it is possible to have
net electric field 0. First, what about third? Okay. Yes. Only in reason number 1. 3 में क्यों नहीं? क्योंकि 3 में जिस चार्ज के पास है 4q उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी. इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और डिस्टेंस. So reason number 3, it cannot have null point. Null point is possible only in reason 1. यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक चार्ज के लिए हम डिस्टेंस लेते हैं इसलिए x k 4q by x स्क्वायर और दूसरी तरफ के लिए डिस्टेंस हो जाएगा a plus x. ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्यों? इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है. So this number is always greater. Right? 4q की इलेक्ट्रिक फील्ड in reason number 3 will always be greater than electric field due to 1. बता रहा है? Reason number 1 में क्यों ऐसा possible है? That these two fields cancel out each other. E1 is equal to E2. E1 is because of charge x. E2 is because of charge 4q. इसका न्यूमरेटर बड़ा, इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा होना चाहिए, so that the ratio get exactly equal. 4x square is a plus x square. Take the root. 2x become a plus x becomes a. There is only one null point, and that is again on the side of a smaller charge, but अभी दोनों के बीच में ना होगा, it would be outside. अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के होते हैं, both positive या both negative, the null point lies in between. If both the charges are of opposite sign, तो null point होगा बाहर की तरफ. Right? ये समझ में आ गया रिजल्ट नंबर 3 में क्यों नहीं होगा? Because the electric field of 4q will always dominate over the electric field of 3. So लिख लो, when charges are of opposite sign, इसके आगे when charges are of opposite sign, the null point lies outside the charges. The null point lies outside the charges on the side of smaller magnitude charge. On the side of smaller magnitude charge. The when charges are of opposite sign, the null point lies outside the charges on the side of smaller magnitude of charge. On the side of smaller magnitude charge. Okay, right. Third case is when both the charges are of opposite sign and same magnitude. एक प्लस की और एक माइनस की. If suppose charges are positive and negative, third case, तो क्या होगा? किधर होगा ये? Index position is the null point. Reason 1, reason 2, reason 3. David, calculate करो लोकेशन कहाँ पर है? नव्या, where is the null point? करके दिखाओ. Very.
Yes. Answer is no null point. No null point. Why not? Positive charge electric field is away from the charge, away from the charge, away from the charge. Negative charge electric field is towards the charge, and towards the charge. देखने में तो लग रहा है 1 या 3 का हो सकता है because opposite assume कर लेते हैं resistance यहाँ पे पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होनी चाहिए assume कर लो कहीं भी assume कर लो बात देखिए ये कभी हो ही नहीं सकता है न्यूमरेटर तो सेम है ना kq by x square will always be greater. It is not possible. जिस चार्ज के पास में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कमेंट कर रही होगी क्योंकि डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है जिसका डिस्टेंस कम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो रीजन नंबर 1 में E1 will be greater than E2 they will never cancel out when you are in reason number 3 तो माइनस q वाले के पास में E2 is always greater than E1. In this scenario, there is no null point. It is not possible to have any position where electric field is equal. So अगर किसी केस में null point नहीं है, then charge के बारे में क्या बताया है information that both are equal and opposite. Two charges are equal and opposite, then there is no. Exam में board में ऐसे question होते हैं. The null point lies in between. What does it represent? Null point lies on the left side region. Then what does it represent? No null point is there. Then what does it represent? It represents that charges are of same sign. Charges are of opposite sign but same. Then there is no null point. उसमें एक और question आता है that is the graph question. Electric field का अगर हमें graph बनाना है in this similar scenario. कई सारे charges और हमें उन charges की वजह से resultant electric field का graph बनाना है. Draw the E versus R graph and the following, especially for the computer level. So E versus R, E versus X graph. ऐसे तीन केसेस को बेस कर दोनों नेगेटिव तो गले में आएगा ना अगर बोथ आर सेम साइन और से अगर एडिट कर दी बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड सेम पे तभी सेम होगा इसमें अगर मैग्नीट्यूड सेम और साइन भी सेम तो मिड पॉइंट कर दे दो फर्स्ट में अगर सेम साइन और सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन होता है सेम साइन का लॉजिक क्या था हमेशा बीच में लाई करेगा और छोटे वाले की तरफ अगर सेम मैग्नीट्यूड भी हो गया तो ना छोटे वाले की तरफ ना बड़े वाले की तरफ इट मींस एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट अभी हम इन्हीं केसेस के ग्राफ बनाने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इज kq by r square अगर किसी चार्ज के पास में जस्ट क्लोज टू द चार्ज व्हिच मींस व्हेन r is tending to 0 r0 तो ये कितना होगा if r is 0 then e is how much r0 something divided by 0 is infinite something divided by 0 is infinitely large if r is tending to infinity then e is tending to 0
तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, उसका E वर्सेस R ग्राफ बना है। Close to the charge infinite and infinite distance to zero. फिर हो जाएगा लेफ्ट साइड में हो गया तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन अपोजिट है, इसके इधर की नेगेटिव वाला इन्फिनिटी और नेगेटिव साइड से। दिस इज फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। For a point charge, E versus R graph is like this. मतलब हमें एक का नहीं बनाना है, यूज कर रहे हैं इसका। R बढ़ रहा है तो उसमें कम हो रहा है। E versus R would have been like this. ये E versus R है, ये सेम ज्यादा ठीक है। E versus R है, लेकिन R स्क्वायर के रेशियो में चेंज हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कोई भी फंक्शन अगर पावर ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा ऐसे ग्राफ बनेगा तो स्लोप का डिफरेंस है। समझ गए नहीं? 0 पे इंफिनिटी, इंफिनिटी पे 0। पॉजिटिव साइड का इंफिनिटी तो प्लस, ये राइट साइड में इंफिनिटी होगी, लेफ्ट साइड में अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट मींस वेक्टोरियल विल बी नेगेटिव। ये तो हो गया हमारा सिंगल पॉइंट चार्ज। अब जो हमने पहला वाला एग्जांपल किया था, पिक द सेम वैल्यूज, it was I think Q and 40. Draw the E versus R graph for this point charge configuration system. You can check the previous calculation. इसमें null point कहाँ पे था? A by 3. दोनों के बीच में, but A by 3. What about reason 1? तो फिर से लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लेते हैं, away from the charge, away from the charge, away from the charge। और Q के इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 ले लेते हैं, away from the charge, away from the charge, away from the charge, and away from the distance। नहीं किसी भी एक पोजीशन से ये वैसे देखो इधर आ पड़ना है, कहीं पर भी R is equal to 0 assume करो, यहाँ से R बढ़ा रहा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, सबसे पहले हमें दोनों का रिजल्टेंट पता है। रीजन नंबर 1 में both is in towards negative direction, negative x, तो रिजल्टेंट भी इसका नेगेटिव x में आ जाएगा। इन रीजन 1 को पूछना नहीं है। Same logic in reason 3, both are in the positive direction, so net will also be in the positive direction, right? Then last दो अलग-अलग फील्ड है ना, हमें तो नेट का ग्राफ बनाना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, तो नेट भी लेफ्ट में होगा। सिमिलरली राइट राइट, तो नेट भी लेफ्ट में, राइट में होगा। अब यहाँ तो 0 है, इसके लेफ्ट में जाओगे तो Q के पास आते Q की फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, डिस्टेंस कम तो फील्ड डोमिनेटिंग। Q की फील्ड थी E1, तो इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, राइट में जाओगे तो 4Q की फील्ड ज्यादा होगी, इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। But second one is the negative. बिल्कुल इस पॉइंट पे होगा ना, इसके लेफ्ट में भी कुछ फील्ड होगी, इसके राइट में भी होगी, और 0 के एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव भी होगी। 0 के एक साइड पॉजिटिव, दूसरी साइड नेगेटिव। अब हमें ये नेट फील्ड को ड्रॉ करना है, इसको प्लॉट। ये समझ आ रहा है? ऑनलाइन किसी को इसमें डाउट? ऋषिता So clear है। E1 E2 लेफ्ट में थे, सो नेट भी लेफ्ट में आ गया। E1 E2 राइट में थे, नेट भी राइट में आ गया। इन बिटवीन जहां पे कैंसिल आउट हो गया उसके लेफ्ट में होंगे, तो Q के पास आ गए, Q की फील्ड ज्यादा बड़ी होगी टुवर्ड्स राइट, और Q के पास आए तो उसकी फील्ड ज्यादा बड़ी होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव, चार्ज के पास में पॉजिटिव और इनफिनिट, और चार्ज से दूर जाओगे तो 0 पॉजिटिव बट 0। Why? Because it is positive, ये हमेशा एक्सिस के ऊपर रहेगा पॉजिटिव साइड में, चार्ज के पास में इनफिनिटी होता है और चार्ज से इनफिनिटी डिस्टेंस होता है 0। सेम लॉजिक रीजन 1 में इट इज ऑलवेज नेगेटिव,
चार्ज के पास में इंफिनिटी बट नेगेटिव साइड वाला इंफिनिटी और चार्ज से दूर जाओगे तो 0 बट नेगेटिव साइड। रीजन 1 और 3 में तो शेप पूछ रहे हो? नहीं, बीच वाला है। हाँ, बीच वाला है। y एक्सिस में दूर चार्ज के पास रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनफाइनाइट और जीरो इनफाइनाइट। जब इस चार्ज के लेफ्ट में तो लेफ्ट नेगेटिव साइड इंफिनिटी, लेकिन नेगेटिव इंफिनिटी नेगेटिव होता है नीचे। राइट साइड में है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, बीच में नल पॉइंट पे जीरो होती है। फिर जब उसके आगे गए तो हम 4 की डायरेक्शन में जा रहे हैं, 4 की इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेन नेगेटिव, सो नेगेटिव और चार्ज के पास पहुंचेंगे तो नेगेटिव वाला है। ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहेगा, मेथड यही है, बट वो ग्राफ पलट जाएगा। इसमें दोनों वाला करेंगे। यस, फॉर्मूला के बेस पे जैसे आपने जो लिखा है इसके बेस पे क्या इसके बेस पे लिमिट आती है जब चार्ज के पास पहुंचोगे। किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के पोजीशन पर डिफाइन नहीं होती, वहां पे हमेशा अनडिफाइंड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड ओनली इन द विसिनिटी, ओनली इन द सराउंडिंग रीजन। इसको मतलब याद करने को ऐसे ऐसी तरीका होता तो मैथ से फॉर्मूला में यहाँ पे r0 इनफाइनाइट, r इनफाइनाइट जीरो। अब जब भी किसी चार्ज के पास में तो r तो जीरो है, अभी प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी वो कैसे दिखाना है हमें? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दैट वी हैव टू गेट बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? ऑनलाइन किसी को डाउट? सिग माइनस q और 4q वाला बना लो ग्राफ। तो सेकंड केस था एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज हो। One is minus q, another is 4q. इसमें बस चार्ज का साइन लिखेंगे, उसका मतलब जो है मैग्नीट्यूड को देख लीजिए। मतलब वो तो हमने निकाल लिया था ना पहले, बाइक होता ही वो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कहाँ पे तक पॉइंट है। यस, ग्राफ कैसे बनेगा? ई वर्सेस आर ग्राफ। सिंगल पॉइंट इधर था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, away from the charge and away from the charge, right? इसमें नेट किधर था? नल पॉइंट का था, which reason is null point? अभी कैलकुलेट किया इसने, सेम एग्जांपल ले रहे हैं। 1 में यहाँ बिंदु 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड में 0। यहाँ पे तो हमेशा नेगेटिव आ गया, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। इसमें E2 हमेशा बड़ा होगा, so it is always towards positive। E0 जब राइट साइड में जाएंगे तो किसकी तरफ है?
towards the minus की charge, minus के पास में minus की field dominate करेगी, so ये होगा right, इससे right side में होगा, तो दूसरी वाली field बड़ी हो जाएगी, so electric field is इधर zero, zero के आगे साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में और जीरो की एक तरफ फिर पॉजिटिव। नल पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगी। ये समझ आ रहा है? नेट की डायरेक्शन अब यहाँ पे नेट हमेशा पॉजिटिव है, सो ऑलवेज पॉजिटिव प्लस जीरो, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। इधर क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में, सो इट इज माइनस इंफिनिटी टू जीरो, इंफिनिटी में तो फिर से जीरो हो जाएगा, ये आगे जाके और फिर से नेगेटिव है, चार्ज के पास में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो तो कहीं होगा नहीं, बिकॉज़ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये माइनस इंफिनिटी से जीरो और फिर से जीरो हो जाएगा, तो कम बैक टू जीरो अगेन, इंफिनिटी पे जीरो होता है, जैसे दूर जाएंगे वैसे कुछ कम होते जाएंगे, तो कम जीरो होगी, राइट? ठीक है, बस के लिए इतना ही, और ग्रेडिंग में फॉर्म दिया। ओके, थैंक यू।